So today's lecture on the central nervous system, that is introduction to the central nervous system. Now what is central nervous system? The central nervous system, it is made up of brain as well as spinal cord. So it is the master system of our body. The central nervous system provides a complex mechanism by which the living organism can react to ever-changing external and internal environment. So that is the basic definition or the intro regarding central nervous system. So what is central nervous system? It provides a complex mechanism by which the living organism, means we people, can react to ever-changing external as well as internal environment. Now how it functions? Now see, any disturbances in environment act as a stimulus, right? Any disturbances in the environment, so that disturbances act as a stimulus. Now that stimulus reaches the central nervous system or the CNS by a sensory pathway. For example, someone pinching me here, so this is sensory input. So that is disturbances in environmental act. So that pinching reaches central nervous system through the nerves, through the sensory nerves, through the sensory pathways. Now what happens? Some sensory inputs. So clear? Some sensory inputs may reaches the conscious or subconscious level. So that is again important. As I said, any disturbances in our environment act as a stimulus, and that stimulus reaches the central nervous system by a sensory pathway. And what happens? Some sensory inputs may reaches the conscious or subconscious level. So that is again important here. While the other produces a responsive organism by motor outputs, which may be voluntary, involuntary, or the result of reflex activities. Got it? I repeat my syntax here. So some sensory inputs may reach the conscious or subconscious level. Clear? Now, while the other produces responses of organism by motor outputs, which may be voluntary, involuntary, or the result of reflex activities. Now what happens? These repetitive events of stimulus response, they forming a memory, है ना? जैसे कि कोई अगर मुझे सेंसरी इनपुट्स दे रहा है या उसको मैं कुछ रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, तो वो सेंसरी और मेरा मोटर उसको रिस्पॉन्स, ये क्या कर रहा है? दे बिल्ड अप अ मेमोरी स्टोर. So that is the repetitive events of stimulus and response, they forms a memory, and that memory stores within the organism throughout the life. एक बार अगर मुझे किसी ने सेंसरी इनपुट दिया या मैंने किसी को देख लिया थ्रू माय सेंसरी इनपुट्स, वो मेरे मेमोरी में थ्रू आउट लाइफ वैसा ही रहेगा, क्योंकि मेरे प्रोसेस उसको मैंने प्रोसेस क्या इंटरप्रेट किया है, तो ये मेरे पूरे मेमोरी में लाइफ टाइम वैसा की वैसा रहेगा. Now what happens? Again the function of the central nervous system. So what it does? So this central nervous system collect the information from surroundings and environment and our body through sensory system. As I said before, so what the function of central nervous system? So this system collecting whatever information from surroundings or the environment or our body through sensory inputs. Now once this information collected, एक बार मैंने ये information collect कर ली मेरे central nervous system ने, then what happen? My central nervous system, it compare and contrast the recent information with past collected information, then processes, interprets, and lastly decides about motor response. So that is the main function of central nervous system. What is the main function here? It collect the information from surroundings, from our body, from all our environment. Then once this information collected, that information is compared, it contrast with recent information. ये जो recent information मैंने collect किया है,
ये क्या होता है, जो भी पास इंफॉर्मेशन मेरे बॉडी में स्टोर है, मैंने पहले बोला था कि मेमोरी हमारा स्टोर होता है वैसे सेंसर इंफॉर्मेशन, तो ये कंपेयर करेगा अभी का जो इंफॉर्मेशन उसको कंपेयर करेगा पास इंफॉर्मेशन से, और एक बार ये कंपेयर करने के बाद क्या होगा, कुछ प्रोसेस करूंगा मैं, फिर इंटरप्रेट करूंगा एंड लास्टली डिसाइड्स अबाउट द मोटर रिस्पॉन्स. फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम टीचिंग इन क्लासरूम एंड समबडी कम्स इन माय क्लासरूम. कोई अगर मेरे क्लासरूम में आता है और परमिशन लेता है क्लास में आने के लिए, तो जैसे वो मेरे क्लास में एंटर करेगा मैं उसको देख लूंगा पहले. तो देखने के बाद मेरा जो विजुअल विजन है, सेंसरी स्टिमुलस, वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि क्या मैंने इसको पहले कभी देखा है. हाँ, अगर ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो मैं उसको अलाउ करूँगी, यस ओके कम इन सेकंड क्लास. अगर वो फर्स्ट ईयर का नहीं है, कोई अननोन है जो पास इंफॉर्मेशन से कंपेयर नहीं हो रहा है, फिर मैं उसको पूछूंगा कि भाई क्या तुम्हारा क्या काम है. तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फंक्शंस है, तो ये मेन फंक्शंस है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, कि जो हमारे पास्ट मेमोरी में स्टोर किया है बचपन से लेके अभी तक, उसको मैं हमेशा कंपेयर करते जाऊंगा रिसेंट इंफॉर्मेशन के साथ में. और अगर नोन है देन मेरा रिएक्शन अलग रहेगा, अगर अननोन है तो मेरा रिएक्शन, दैट इज मोटर रिस्पॉन्स, ये डिफरेंट रहेगा. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सिंपल सिंपल. Now, again we enter the central nervous system. So, the central nervous system, it is the chief controlling and coordinating system of our body. It is a controlling system. It controls the all activities of our body. It controls whatever functions of our body. Suppose मुझे अगर भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मुझे थकान महसूस होती है, तो उसको मैंने क्या करना चाहिए, फिर कोऑर्डिनेट करेगी. अगर मुझे प्यास लगती है तो मुझे पानी पीना चाहिए, अगर मुझे भूख लगेगी, हंगर इज अगेन वन ऑफ द सेंसरी रिस्पॉन्स, तो मुझे खाना खाना चाहिए. सो दैट्स व्हाई इट इज अ कंट्रोलिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग एज वेल एज coordinating system of our body. Now another important functions of the central nervous system. So it is important. So it is responsible for judgment. It is again very very important. So the central nervous system, it is responsible for judgment. Judgment कैसा? सिंपल एग्जांपल जैसा कि मैंने पहले दिया था कि somebody pinches me here, किसी ने मुझे यहाँ पर पिंच कर लिया, तो मुझे जज करना है कि ये पिंच जो मुझे यहाँ पर हो रहा है ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है. अगर अच्छा तो रहेगा ही नहीं, बुरा ही रहेगा हमेशा. तो बुरा रहेगा तो सडन मेरा मोटर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और मेरा हाथ बाजू निकल जाएगा. सो दैट इज जजमेंट, व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज बैड फॉर मी. So that is the main function of central nervous system. So it is responsible for judgment, then intelligence, मेरा IQ level, then memory. So it is responsible for three main functions. The first function, judgment, what is bad for me, what is good for me. Then intelligence. अगर मुझे skillful कुछ काम करना है, तो अगर कोई मुझे बोलता है कि हैंडराइटिंग तेरा खराब है या बुरा है, तो वो अगर मुझे बोलेगा कि मेरा हैंडराइटिंग खराब है, तो मेरा मेमोरी काम करेगा कि कैसे मेरा हैंडराइटिंग अच्छा हो जाएगा. या कोई अगर मुझे बोलता है कि यू आर डल इन एनाटॉमी, तो मेरा मेमोरी काम करेगा कि मैं अगर एनाटॉमी में डल हूँ तो मुझे कैसे उसको अच्छा करना है या उसमें अच्छा सा लर्न करना है. सो दैट इज इंटेलिजेंस, है ना. और ये मेमोरी, जैसे कि मैंने पहले बोला कि भाई जो भी मैं देखता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, वो सब मेरे मेमोरी में जमा होता है. मेरे प्रोसेसर, जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, वैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज वन ऑफ द प्रोसेसर. तो ये सब वहाँ जमा हो रहा है. अंडरस्टैंड. सो दीज आर द मेन फंक्शंस. अनदर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो इट इज हाईली इवॉल्व्ड एट द कॉस्ट ऑफ रीजनरेशन. सो दैट इज अगेन द important as well as main function of central nervous system. Now again we just learn discuss the functions of the central nervous system. So what it does, so it adjusts our body to the surroundings and regulates all body activities, both voluntary as well as involuntary. So it is again the function, as I said, we discuss the functions of central nervous system here. So what it does, so it adjust our body to the surroundings. For example, winter season में तो ठंड तो लगेगा ही, बचेगा ही.
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमको बोलता है कि ये विंटर सीजन है, ठंड लग रहा है, तो जल्दी से खुद हमारे बॉडी को थोड़ा सा गर्म करेगा, एडजस्ट करेगा वो टेम्परेचर में हमको रहने की। ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन है। फिर ये रेगुलेट करेगा हमारे बॉडी एक्टिविटीज, व्हाटएवर बॉडी एक्टिविटीज। टू बॉडी एक्टिविटीज आर मेन हियर, वन इज द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। सो these are the again the important functions here. Central nervous system adjust our body with surroundings as well as regulate the all bodily activities. Understand? Then another functions here, the sensory part of central nervous system. You know that the sensory part is the important and the main part of central nervous system. So what it does, so this sensory part collect the information from surroundings. मैंने पहले बोला कि जितने भी मेरे सेंस ऑर्गन्स हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, यहाँ जो डायग्राम मैंने निकाले उसमें आपको समझ में आएगा, बट नाउ दिस इज इंट्रो लेक्चर, ये फंक्शन हाउ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फंक्शनिंग, दैट्स व्हाई। सो दिस सेंसरी पार्ट व्हाट इट डज, सो इट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स एंड हेल्प्स द गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। ये पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और मोटर पोर्शन, ये हो गया सेंसरी पोर्शन। मोटर पोर्शन क्या करेगा, वेयर इज द मोटर पार्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सेस ऑफ आवर बॉडी। सो ये ग्रॉस अगर आपको याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा, एक सेंसरी सिस्टम से और एक मोटर सिस्टम से। सेंसरी सिस्टम क्या कर रहा है, ये पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है व्हाटएवर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, फ्रॉम द बॉडी। और मोटर सिस्टम क्या कर रहा है, ये जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ये जज कर रहा है, उसको जजमेंट कर रहा है कि ये मेरे लिए क्या गुड है क्या बैड है, और उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। मोटर मीन्स रिस्पॉन्सिव, इट जस्ट रिस्पॉन्सेस whatever the sensory inputs collecting through the sensory system. Understand? Now another important thing regarding the brain or the central nervous system, the brain is the main component of central nervous system, the cerebrum. Now the average weight of cerebrum, so it is about 1.5 kg. It is the average weight of cerebrum. Now what happens, since the brain floats in cerebrospinal fluid, listen carefully, the brain floats in cerebrospinal fluid, it only weighs about 50 gram, which is more comfortable. So that is again important here, 1.5 kg बहुत ज़्यादा वेट है ये, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसके पेरीफेरी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इट रिप्लेसेस द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं है, तो वो लिम्फेटिक ड्रेनेज रिप्लेस कौन कर रहा है, हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, इट सराउंड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये सराउंड कर रहा है ब्रेन को, सेरेब्रम को, सेरेबेलम को, व्हाटएवर कंपोनेंट, व्हाटएवर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो बिकॉज ऑफ दैट हमको कुछ भी वजन महसूस नहीं होता है। एग्जाम्पल मैंने दिया था, अगर किसी ने इतना छोटा सा अगर ये पेन का यहाँ रख दिया तो मुझे महसूस होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम 5 ग्राम का होगा, लेकिन यहाँ अननोइंगली किसी ने रख दिया तो मुझे महसूस होता है कि यहाँ कुछ तो रखा है। लेकिन 1.5 किलो सेरेब्रम, उसके बाद में 90 ग्राम सेरेबेलम, उसके बाद एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स है, so many important blood vessels present there, venous sinuses present there, dura matter, arachnoid matter, pia matter is there। ये सबको अगर हमने मिलाया तो 2-2.5 किलो होगा, 2-2.5 किलो। अगर मुझे ये 5 ग्राम का पेन का जो यहाँ किसी ने रख दिया अननोइंगली तो मुझे महसूस होता है, या मेरे सर के कुछ बाल भी अगर हिलते हैं अननोइंगली तो मुझे महसूस होता है कि ये बाल हिल रहा है, लेकिन ये 2.5 किलो मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रम का वजन 1.5 किलो है, लेकिन रिलेटेड स्ट्रक्चर बहुत है उसके, सबका वजन मिला के 2-2.5 किलो हो रहा है। सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे ब्रेन का वजन होता है 50 ग्राम। वो तो ठीक है, इट्स कंफर्टेबल। नाउ अभी न्यूरॉन की हम लोग थोड़े से बात करेंगे। सो देयर आर अबाउट 130 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन एडल्ट ब्रेन।
वेरी रिच, बहुत बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स है, कितने 130 बिलियंस, इतने न्यूरॉन्स हमारे एडल्ट ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नाउ सी द डायग्राम हियर। अभी यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है, तो थोड़ा सा उसको फोकस कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस एंड व्हाट आर द कंपोनेंट रिस्पांसिबल फॉर दिस फंक्शंस, वो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। नाउ सी दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम हियर, जो मैंने ड्रॉ किया, और यहाँ पर उसका उसकी कंपोनेंट्स, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है वो लिखा है। सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन, अगेन द ब्रेन is made up of cerebrum, cerebellum, pons, medulla, all this structure, and along with spinal cord also. So these all are the component of central nervous system. मैंने पहले आपको फंक्शंस बोला, अभी ये फंक्शन कैसे होते हैं ये यहाँ पर आपको मैं लर्न कराऊंगा. So the brain as well as spinal cord all are the component of central nervous system. Then how it works? The central nervous system works through peripheral nervous system. So that is peripheral nervous system. Now this is how this peripheral nervous system is made up of. The peripheral nervous system, it is made up of the spinal nerves and cranial nerves. 31 pairs of spinal nerves and 12 pairs of cranial nerves. All are the component of peripheral nervous system. ये उसकी कंपोनेंट है. अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? मैंने पहले बोला कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? इट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सीएनएस क्या कर रहा है? ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है पीएनएस, पेरिफेरल. अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे? नो, फॉर दैट पर्पस द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू कंपोनेंट, टू पार्ट्स. So these are the parts of peripheral nervous system. Which are they? The first part of peripheral nervous system is sensory peripheral nervous system. It is the one of the component of peripheral nervous system. It is again important. And second component is motor peripheral nervous system. ठीक है. पहले बोला आपको CNS. It is made up of brain and spinal cord along with all the structure present there. Then PNS, peripheral nervous system. It is made up of 31 pairs of spinal nerves as well as the 12 pairs of cranial nerves. For the functioning purpose, the peripheral nervous system is divided into the two parts, the sensory peripheral nervous system and motor peripheral nervous system. Through this sensory peripheral nervous system, all the sensory inputs get collected and all these transfer towards the peripheral nervous system. जितने भी सेंसरी इनपुट्स है, मैंने पहले बोला है सीएनएस कैसे वर्क कर रहा है, ये कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन सराउंडिंग से, बॉडी से. तो कैसे कलेक्ट करेगा? थ्रू दिस सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और सेंसरी नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, व्हिच आर देयर. द फर्स्ट पार्ट इज द स्पेशल सेंसेस एंड द सेकंड पार्ट इज जनरल सेंसेस. व्हाट इज स्पेशल सेंसेस? द स्पेशल सेंसेस मीन्स the senses or the specific part which is responsible for to collect the sensory input. उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. स्पेशल पार्ट हमारे बॉडी के कौन कौन से हैं? The vision is a special part of our body which collect the all sensory information. मुझे कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वो सब मैं कैसे कलेक्ट करूँगा? थ्रू द विजन. स्पेशल सेंस है हमारे. सेकंड सेंस, स्पेशल सेंस हमारा कौन सा है? दैट इज नोज, दैट इज ऑल्फैक्शन, स्मेल. ऑल्फैक्शन कौन सा बैड है, कौन सा गुड है, वो तो बाद में, लेकिन ऑल्फैक्शन इज द स्पेशल सेंस ऑफ आवर बॉडी. देन थर्ड इज द टेस्ट, टंग. टंग इज रिस्पांसिबल फॉर दैट. द टिप ऑफ टंग, इट इज फॉर द स्वीट. देन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, इट इज फॉर द क्या बोलते इसको, बिटर. एंड सॉल्ट के लिए मिडल पोर्शन है ना. दिस आर द फंक्शंस ऑफ आवर टंग. सो द टेस्ट सेंसेशन, ये कलेक्ट स्पेशल सेंस है हमारे बॉडी के. देन फोर्थ वन इज द हियरिंग. हम क्या सुन रहे हैं, कैसा सुन रहे हैं, ये अच्छा है या बुरा है, ये सब कलेक्ट करेंगे दिस थ्रू दिस ईयर, हियरिंग सिस्टम. एंड द फिफ्थ सेंस दैट इज इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर.
मैं सोसाइटी में अगर मुझे जाना है तो मुझे कैसे जाना है, मुझे मेरा गेट कैसा रहेगा, मेरा पोस्चर कैसा रहेगा, मुझे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, मुझे क्या करना है, ये सब कौन कर रहा है, ये हमारे सेंसेस है और ये इक्विलिब्रियम और पोस्चर. So these all are the special senses, specific part of our body. They collect all sensory information from our body as well as surrounding environment. For example, अगर मैं देख रहा हूँ किसी जाते जाते मैंने किसी हीरो को देख लिया या किसी सलमान खान को मैंने देख लिया, तो सलमान खान को देख लिया तो देखते ही मुझे या मेरा मेमोरी क्या करेगा, पास मेमोरी से उसको इंटरप्रेट करेगा और फटाक से मुझे मालूम हो जाएगा हाँ ये सलमान खान. तो ये फंक्शन हमारे है. जैसे हियरिंग का, अगर कोई गाना मैंने जाते जाते रास्ते में सुन लिया, मैंने कोई भी फिल्म का गाना, कोई भी गाना आप लोग सुन सकते हो, तो वो गाना अगर मैंने सुन लिया तो सुनते ही वो मेरे ब्रेन तक जाएगा थ्रू दिस सिस्टम, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड फटाफट एक्शन करेंगे कि भाई कौन से फिल्म का गाना है, इसमें कौन से हीरोज ने काम किया है, कौन से हीरोइन ने काम किया है, और फटाक से मुझे आंसर मिल जाएगा हाँ ये फलाने फिल्म का गाना है और ऐसा ऐसा है, इसका ये म्यूजिक डायरेक्टर. सो दीज आर द स्पेशल सेंसेस, दे कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन. ऑल्फैक्शन, कोई स्मेल अगर मुझे अच्छी आती है, कोई सपोज रोज है, रोज रखा है किसी ने, अगर ताज़ा रोज मेरे पीछे भी किसी ने रखा है तो उसमें उसका स्मेल मुझे आ जाएगा, फटाक से आई आइडेंटिफाई द स्मेल एंड मुझे मालूम हो जाएगा हाँ ये रोज रखा है किसी ने. चमेली, अच्छे फ्लावर्स है, अच्छे सेंट्स हैं, ये बुरे भी सेंट्स है. तो ये सब हमारा ऑल्फैक्शन इसको इंटरप्रेट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आ जाएगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेगा हाँ ये अच्छा है या ये बुरा है. जैसे हियरिंग बोला मैंने, टेस्ट बोला भी मैंने, बोला कि टिप ऑफ द टंग इट इज फॉर द स्वीट. अगर कोई भी स्वीट है तो मुझे टिप को मालूम हो जाएगा ये हाँ ये स्वीट आइटम है खाने के लिए. पोस्टीरियर पोर्शन, ये बिटर, कुछ भी अगर मुझे पोस्टीरियर समझ वो वहाँ पर टेस्ट बड्स होते हैं. डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग इज रफ, देयर आर पेपिल्स प्रेजेंट. व्हाई इट इज रफ? बिकॉज ऑफ पेपिल्स. 4 types of papillae present there. So this papilla is functioning for all these taste sensations, sweet, bitter, salty, etc. etc. And equilibrium as well as posture. मैंने पहले बोला कि अगर मैं अच्छे सोसाइटी में जा रहा हूँ तो मुझे कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, ऑटोमेटिकली मेरा बॉडी खुद उसको अडेप्ट करेगा. अंडरस्टैंड? सो दिस ऑल आर द स्पेशल सेंसेस. अभी दूसरा जो सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टाइप है दैट इज जनरल सेंसेस. जनरल मीन्स ये हमारे बॉडी से आते हैं, जनरल सेंसेस हमारे बॉडी से आते हैं. अब कैसे अगेन फॉर स्टडी पर्पस जनरल सेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 types, द सोमैटिक एंड विसरल. सोमा मीन्स बॉडी एंड विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स. विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स. सो अभी सोमैटिक सेंसेशन मुझे कहाँ से आता है? मैंने पहले बोला बॉडी से. तो सबसे पहले स्किन, whatever sensation स्किन से मुझे मिलेगा, तो ये मैं कैरी करूँगा थ्रू दिस सिस्टम. फिर सुपरफिशियल रीजन, जैसे मैंने पेज का एग्जांपल दिया था, ये पेज स्किन से जा रहा है, सुपरफिशियल रीजन से ये सेंसेशन लेके जा रहा है, तो ये जनरल सेंसेशन है. फिर उसके बाद में लोकोमोशन, मुझे चलना है, मेरे जॉइंट काम कर रहे हैं. जो भी सेंस या जो भी सेंसरी इनपुट्स जाने से आने से आते, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहीं दूर जाता हूँ चलते हुए, तो कहाँ जाता हूँ ये मेरा ब्रेन याद रखता है, और बाद में मुझे वहाँ जाने के लिए ऑटोमेटिकली वहाँ जाने के बाद मुझे याद है हाँ मैं लास्ट टाइम 8 days बिफोर मैं यहाँ पर आके गया. लोकोमोशन, ये भी सेंसरी सिस्टम में कलेक्ट करने का इंफॉर्मेशन. देन प्रोप्रियोसेप्शन, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोप्रियोसेप्शन. प्रोप्रियोसेप्शन ये क्या इम्पोर्टेंट है? प्रोप्रियोसेप्शन ये हमारे बॉडी का स्पेशल सेंस है. एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आपको. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे सामने हाथ रखता हूँ, सामने में ऐसे हाथ रखा और मैंने आँख बंद की, ये लेफ्ट हैंड में ऐसे सामने रख दिया और जैसे इंडेक्स फिंगर यहाँ से पॉइंट ऑफ किया मैंने इंडेक्स फिंगर, और मैंने आँख बंद कर दी और मेरे राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को मैंने ऑर्डर दिया तो वे जस्ट टच द इंडेक्स फिंगर ऑफ लेफ्ट लाइक दिस. आँख बंद नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक टच हो रहा है. सो दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन. दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन. ये जो सेंस है
कि मैंने एक बार देख लिया कि यहाँ रखा है मेरा फिंगर, पॉइंट आउट किया मैंने, बाद में आँख बंद कर लिया, फिर मैंने इसको ऑर्डर दिया कि जस्ट टच दिस वन, ऑटोमेटिकली टच होता है। सो दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन। अगेन ये स्पेशल सेंस है हमारे बॉडी का। सो द पेन, टच, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, सो अगेन दीज आर द जनरल सोमैटिक सेंसेशन जो हमारे बॉडी से, जो हमारे स्किन से, जो हमारे लोकोमोशन से या प्रोप्रियोसेप्शन से आते हैं। ये सब सोमैटिक सेंसेशन। सोमा इट इज अ लैटिन वर्ड, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज बॉडी। फिर दूसरा जनरल सेंसेशन का टाइप क्या है, दैट इज विसरल। जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन से, इंटरनल ऑर्गन से क्या हमको सेंसेशन आते हैं। फॉर एग्जांपल डलनेस, देयर इज अ डलनेस ऑफ एब्डोमेन। अगर मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत अच्छा खाने के लिए था तो मैंने ज़्यादा खा लिया, लेकिन कभी कभी वहाँ एब्डोमेन में डलनेस फॉर्म हो जाता है, एकदम ब्लोटिंग होता है। सो दैट इज डलनेस। फिर दूसरा क्या है, पेन। अगर बहुत ज़्यादा मैंने खाना खा लिया तो मेरा स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो मे बी देयर आर चांसेस ऑफ गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में ITIS, ITIS मीन्स पेन, ये पेन भी मुझे फील कर रहा है, तो ये भी मेरा विसरल सेंसेशन। फिर डिस्टेंशन, मैंने पहले बोला मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, एकदम ब्लोटिंग हो गई, गैस फॉर्मेशन हो गई। सो दैट इज वन ऑफ द सेंसेशन, दैट इज डिस्टेंशन। सिंपल अगर आपको याद रखना है कि विसरल सेंसेशन मीन्स क्या होगा, जो डीपर पार्ट से आता है हमारे बॉडी की, और सोमैटिक सेंसेशन क्या है, जो हमारे सुपरफिशियल पार्ट से आता है। तो ये पूरा सेंसरी सिस्टम के कंपोनेंट है। अब ये दोनों स्पेशल सेंस और जनरल सेंस, ये दोनों सेंस क्या करेंगे, पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे हार्मोन्स, और पूरा इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास। अंडरस्टैंड? ये देखो मैंने एरो बनाया यहाँ पर, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ये पूरा इंफॉर्मेशन लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। मैंने आपको बोल दिया कि हाउ दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग, कैसे कलेक्ट कर रहा है, ये पूरा सेंसरी इनपुट से कलेक्ट कर रहा है। और यहाँ CNS में आने का व्हाट हैपन, दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटरप्रेट्स, इट कंपेयर दिस इंफॉर्मेशन विद पास्ट इंफॉर्मेशन, देन प्रोसेसेस, देन डिसाइड्स व्हाट टू डू। और फिर वहाँ से वो इंफॉर्मेशन, एक बार डिसाइड कर लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कि मुझे क्या करना है, फिर वो इंफॉर्मेशन फिर आएगा तुम्हारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास आने के बाद ये जाएगा यहाँ से मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास। अभी मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, अगेन फॉर स्टडी पर्पस और द फंक्शनिंग पर्पस, द मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, द सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम and autonomic motor system. What is soma? Again, soma means body. So that somatic motor peripheral nervous system. So it is also called as the voluntary system. For example, अगर स्ट्रोम आ रहा है एकदम से, मुझे दिख रहा है कि स्ट्रोम आ रहा है, स्ट्रोम आ रहा है, दिख रहा है कि मैं बिल्कुल मेरी आंखें बंद कर दूँ। स्ट्रोम आ रहा है, मेरे CNS तक लेके जाएगा, जैसे विजन लेके जाएगा, बिल्कुल स्ट्रोम आ रहा है, ये लेके जाएगा CNS तक, CNS फटाक से ऑर्डर देगा मेरी आँख को वॉलंटरी है, तो मैं आँख बंद करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरी आँख बंद हो जाएगी, दैट इज सोमैटिक, ये वॉलंटरी। और दूसरा जो मोटर सिस्टम का कंपोनेंट है, दैट इज एटोनॉमिक, इट इज इनवॉलंटरी। फॉर फंक्शनिंग पर्पस द एटोनॉमिक सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। What sympathetic does, so it increases the function. What parasympathetic does, it decreases or levels the function. So this is regarding how this CNS works and what are the components of CNS. So this is regarding CNS. In next lecture we discuss the further parts of central nervous system. Thank you.